Dear students, class 12th A and B, spinal curvature, रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना. This type of deformity is related to the spine. The deformity is caused by the carrying excessive weight beyond one's capacity. In other words, we can say that weak muscles can cause the formation of spinal curvature. The normal lumbar spine is characterized by a moderate anterior hypertension curve when viewed laterally. There is no absolute standard for the determination of the degree of extent of the anterior concavity of the normal lumbar curve. There are three types of the spinal deformities. इस प्रकार की विकृति रीढ़ की अस्थियों में होती हैं. यह विकृति अधिक भार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के कारण होती है. वास्तव में पीठ की मांसपेशियों में कमज़ोर हो जाने से रीढ़ की अस्थियों टेढ़ी हो जाती है. ठीक प्रकार से नस होने के कारण भी रीढ़ की अस्थियों का संतुलन ठीक नहीं रहता तथा अनेक विकृतियाँ आ जाती हैं. रीढ़ की अस्थि की विकृतियाँ निम्न प्रकार की होती है. नंबर 1 किपोसिस, बी लॉर्डोसिस, सी स्कोलोसिस. किपोसिस का मतलब होता है कोबड़ आगे की, कोबड़ पीछे को. लॉर्डोसिस कोबड़ आगे को. स्कोलोसिस झुकना, रीढ़ की अस्थियों की एक और झुकना स्कोलोसिस बोलते. किपोसिस implies and the increase in the exaggeration of the backward or the posterior curve of a decrease or reversal of a forward curve. It is also called round. Upper back depression of chest is common in किपोसिस. किपोसिस का मतलब होता है कोबड़ पीछे को. इस प्रकार के कोबड़ में रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर हो जाती हैं. इस दशा में छाती सीधी नहीं होती, सिर और गर्दन आगे की ओर झुक जाती है. ऐसी अवस्था में श्वसन क्रिया ठीक नहीं रह पाती. इस प्रकार के कोबड़ में छाती का दबा होना आम होता है. Case of kyphosis. Kyphosis is caused by the malnutrition, illness, crowded areas, unavailability of pure insufficient exercise, rickets, carrying heavy load on the shoulders, unstable forearms, weak muscles among girls, habit of doing work by learning forward etc. कुपोषण बीमारी भीड़, स्वच्छ वायु की कमी, अर्याप्त रिकेटस, कंधों पर अत्यधिक भार ले जाना, अनुचित फर्नीचर, मांसपेशियों की कमजोर होना, लड़कियों में शर्मिलापन व आगे झुककर काम करने की आदतों का होना आदि पीछे की ओर के कोबड़ का मुख्य कारण होते हैं. केस ऑफ द किपोसिस. Precautions. If specific precautions are not followed, it may result in kyphosis, so the teachers and parents should pay specific attention as to avoid this disorder from the very beginning. They should teach appropriate posture of the sitting, standing and the walking of the children so that their posture may remain balanced, proper and adequate exercise is not only helpful in maintain proper posture but also controls the problem of kyphosis. यदि विशिष्ट सावधानियों का पालन किया जाए तो परिणाम स्वरूप कोबड़ पीछे को किपोसिस हो सकता है. इसलिए अध्यापक व माता पिता को उस बिंदु पर विशेष ध्यान देना चाहिए. ठीक प्रारंभ से ही बच्चों के बैठने, खड़े होने व चलने के उचित आसनों को सिखाना चाहिए ताकि उनके आसन संतुलित रह सके. बच्चों के उचित व्यायाम भी करना चाहिए क्योंकि उचित व्यायाम न केवल उपयुक्त आसन को बनाए रखने में सहायक होता अपितु पीछे की ओर कोबड़ की समस्या को भी नियंत्रित करता है.
Next, lordosis. Lordosis, the inward curvature of spine. In fact, it is an increased forward curve in the lumbar region. It is create problems with standing and walking. The body seems to be stiff. Lordosis can be corrected in the early stage. आगे की ओर कोबाल लॉर्डोसिस में रीढ़ की अस्थियां ऊपर से नहीं अपितु नीचे से आगे की ओर झुक जाती है। इस प्रकार की विकृति से चलने व खड़े होने में काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। शरीर अकड़ा हुआ रहता है। व्यक्ति की शर्म तथा घटियापन इन्फीरियरिटी महसूस होता है। आगे की ओर के कोबाल लॉर्डोसिस को प्रारंभिक अवस्था में ठीक किया जा सकता है। केस ऑफ लॉर्डोसिस जनरली imbalanced diet, proper environment, improper development of the muscles of satiety and the disease affecting vertebra and spinal muscles are the case of lordosis. In addition of this case, not performing exercise and eating excessive food are also the major case of lordosis. साधारणतः असंतुलित आहार, अनुचित वातावरण, मांसपेशियों को अनुचित विकास, स्थूलता, ओबेसिटी, रीढ़ की अस्थियों को प्रभावित करने वाले रोग तथा पीठ की मांसपेशियों में कमजोरी आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिसके कोबाल आगे को और लॉर्डोसिस हो सकता है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त व्यायाम न करना तथा अत्यधिक भोजन करना भी आगे की ओर के कोबाल के मुख्य कारण होते हैं। प्रोसिक्शंस। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। संतुलित आहार लेना चाहिए। ओबेसिटी शुड बी कीप अवे स्पेशली इज अर्ली एज। स्थूलता से विशेष रूप से कम आयु के बच्चों को दूर रखना चाहिए। द बॉडी शुड बी कीप्ड स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट। भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए शरीर को सीधा रखना चाहिए। एक्सरसाइज इनटेक ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड। अत्यधिक भोजन लेने से परहेज करना चाहिए। रेमेडीज फॉर द रिमेंबर्ड For the remedy of the lordosis of the following exercise should be while maintaining a standing position, bend forward from hip level, response exercise 10 minutes. आगे की ओर के कोबाल के उपाय के लिए निम्नलिखित व्यायाम करने चाहिए। फर्स्ट, while maintenance is a standing position, bend forward from hip level of exercise 10 minutes. सीधी खड़ी हुई स्थिति में खुले हिप्स के स्तर से आगे झुके, फिर प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं तथा फिर आगे झुके। इसी व्यायाम को कम से कम 10 बार दोहराएं। 2 पॉइंट। लाई डाउन ऑन योर बैक एंड रेस योर हेड एंड लेग्स स्टिमुलेटली द फोर्टेन। पीठ के बल लेट जाएं, फिर सिर तथा टांगों को एक साथ ऊपर उठाएं। इस व्यायाम को कम से कम 10 बार अवश्य दोहराएं। नंबर 3 परफॉर्म सिटअप्स रेगुलरली। नियमित रूप से सिटअप्स लगाएं। हलासन शुड बी परफॉर्म्ड रेगुलरली। हलासन को नियमित रूप से करना चाहिए। 5th, यू शुड बी डाउन ऑन द स्पाइन पोजिशन दैट ऑन योर बैक देम शुड रेज legs at 55 angles. Remain in the position for some time. पीठ के बल नीचे लेट जाएं, फिर अपनी टांगों को 45 कोण पर ऊपर उठाएं तथा कुछ समय के लिए इसी अवस्था में टांगों को स्थिर रखें। 6, toe touching exercise should be done for at least 10 times. सीधे खड़े होकर आगे की तरफ झुकना तथा कम से कम 10 बार टो टीचिंग करना। सिट डाउन एंड एक्सटेंड फॉर द लेग्स फॉरवर्ड, ट्राई टू ब्रिंग योर नीज टू द फोरहेड, रिपीट दिस एक्सरसाइज 10 मिनट्स। टांगों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं, फिर अपने माथे से अपने घुटनों को स्पर्श करें। यह व्यायाम 10 बार दोहराएं। स्कोलोसिस। Postural adaptation of the spine is a lateral direction is called scoliosis. In fact, sideways curves and may be called scoliosis curves. Indeed, these curves are indeed either convexity right of the right convexity, a simple or single curve to the left or common
or conversely left is commonly called is a curve. Scoliocyst curve may be found in S shape. रीढ़ के अस्थियों को शरीर के दाईं या बाईं ओर झुक मोड़ना स्कोलियोसिस कहलाता है। स्कोलियोसिस का अर्थ होता है मोड़ना, ऐंठना या घूमना। वास्तव में इसमें बराबर की तरफ वक्र होता है तथा इसे स्कोलेटिक वक्र कहते हैं। यदि रीढ़ की अस्थियां में यह वक्र या गोलाई की बाईं की ओर हो तो इसे सामान्यतः सी वक्र कहा जाता है। कई बार ये वक्र दोनों ओर भी हो सकते हैं। एस वक्र कहलाता है क्योंकि इसकी आकृति एस जैसी होती है। केस ऑफ स्कोलियोसिस, postural scoliosis may be due to the many reasons, but the main reason are discussed in the joints of the bones, underdeveloped legs, infantile paralysis, rickets, carrying heavy loads on the shoulder, unhealthy conditions such as the inadequate lighting arrangement, uncomfortable discs, partial deafness, and the wrong standing posture. It may be caused by congestion of the acquired abdominals of the vertebra, muscles, or nerves. स्कोलियोसिस के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन अस्थियों के जोड़ों के रोगों का होना, टांगों का अविकसित होना, शिशुओं के अन्तरंग रिकेट्स आदि मुख्य कारण होते हैं। यह भारी वजन एक कंधे पर ले जाने, अवस्थाकर दशाएं, ऐसे प्रकाश की व्यवस्था में कमी होना, अनुचित डेस्कों का होना, आंशिक बहरापन व खड़े होने का अनुचित आसन के कारण भी हो सकते हैं। यह मेरुदंड, वर्टिब्रा, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं को जन्मजात या अर्जित असमानताओं के कारण भी हो सकता है। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, संतुलित आहार लेना चाहिए। स्टैंडिंग शुड बी अवॉइड इन साइडवेज बेंडिंग पोजीशन, एक तरफ मुड़ी अवस्था में पड़ने से बचना चाहिए। अवॉइड वॉकिंग फॉर लॉन्ग